Apparently, when I started doing research on the thing, ki how Lavani came into existence and how Lavani is so beautifully, it is a treasure actually. Means अगर कहा जाए तो हमारे हिस्ट्री में से मतलब जब शिवाजी महाराज जी का टाइम था, usually people used to say that I am straight. Right now, what people say that I am bi-curious. It was the lust then, because as you are open to everything, अच्छा इसके साथ भी करना है, उसके साथ भी करना है, and then that become fantasy कि यार So yo everyone, कैसा है? This is Dishank Tiplay. Welcome back to the podcast. आज एंगल ये साइड पे नहीं, ये साइड पे, तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. हमारा दीवार भी ऑरेंज है. अरे मेंशन नहीं करना ब्रो, ये क्या चेंज हो गया है. By the way, आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल है. We have first celebrity, as you can say, verified profile on our show, because like मतलब क्या ही बोलूं, like I can't introduce it. मेरा शब्द कम पड़ रहा है. ऐसा सीन हो गया. He's a dancer. He does Kathak and he is someone from like 19 years of dancing background, OG. And dance जिसको बोलते हैं असली में वो कला है. मतलब खुदक पुदक करने वाला कला नहीं, असली जो हाथ के मुद्राएं रहते हैं, कला रहता है, वो सब जो ऐसे जाते हैं, जिन नटापटा असं प्रॉपरली असते ना, जे बोलतात ना आहा लावणी, म्हणजे ढोलकीच्या तालावरून स्वागत करण्यासाठी इकडे आलेले आहेत. कीप युअर हँड्स टुगेदर फॉर आशीष सर. आशीष दादा. सर कैसा आना हुआ? So apparently, first of all, thank you so much for having me on this platform. And yes, my very good friend Rakshanda told me that my friends have started a podcast, and of course तिचा पण podcast मी बघितला, and she has, I've seen for a very first time she has opened her heart out, and then she told me that sir, would you like to do it? And I was like कि चलो yes, मैं भी करूँगा, और let people know कि क्या हो रहा है जिंदगी में, let people know the journey, how difficult life is, and how simple also we can make it. And yes, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ, and thank you for having me once again, and thank you for such a beautiful introduction. And yes, I don't not only perform Kathak, for a correction, I do all the folk art form, and especially specifically मैं folk ज़्यादा करता हूँ, and उसमें से लावनी मेरी जान है, that the whole world knows. That's why my Instagram account goes with Ashish Patil, the Lavani King, which has got verified after that. So I guess say. Because like if you see, Lavani is something, I don't know why, but people have looked down on Lavani for some reason. And they have thought कि Lavani मतलब कुछ तो गंदा है. Yes. But I don't think Lavani is something bad. Lavani is excellence, and वो मतलब it can prove something. Absolutely. मला वाटतं मतलब जितना मेरे करियर में मैंने डांसिंग किया है, ऑफ कोर्स मैं बहुत सारा इंडियन डांसिंग करता था पहले, बट जब मैंने देखा कि बीइंग अ महाराष्ट्रियन, लावनी इज समथिंग व्हिच आई हैव सीन सिंस माय चाइल्डहुड, इवन यू मस्ट हैव सीन. सो आई फील की लावणी जब मैंने पहली बार देखा था तो मैंने सुरेखा पुणेकर ज्या लावणीच्या खूप मोठ्या सम्राज्ञी आहे, आय हॅव सीन हर, अँड आय हॅव नॉट सीन अ सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ दॅट लेडी विच इज वल्गर. She just come decked up, she stands on the stage and she is so out there with all the expression. Even when she wink, ती जेव्हा डोळा मारते, when she winks like that, it is so beautiful. It is not at all vulgar. And apparently when I started doing research on the thing ki how Lavani came into existence and how Lavani is so beautifully, it is a treasure actually. Means अगर कहा जाए तो हमारे हिस्ट्री में से मतलब जब शिवाजी महाराज जी का टाइम था, उस टाइम पे मुझे लगता है कि कहीं पे लावनी दरबार में परफॉर्म की जाती थी, और मुझे लगता है कि लावनी का जो लावण्य है वो दरबार में पेश करना, वो भी महाराज के सामने, मतलब सोचो कि वो कितना रिस्पेक्टफुल था, एंड अभी जब लावनी आगे बढ़ती गई तो इट गॉट ट्रांसफॉर्म टू तमाशा, जो जहाँ पे जतरा में होता था या यात्रा होती थी गांव की, वहां पे परफॉर्म होता था, और कुछ लोगों ने उसे वैसा ही रखा, बट कुछ लोगों ने उसको एक अलग, नॉट बिकॉज द डांसर्स वर रॉन्ग, बिकॉज द ऑडियंस they got were wrong, उनको लगा कि अगर लड़की नाच रही है तो शायद अगर मैं उसको प्रपोज करूँ तो I can have
one night with her, kind of. Sexualize कर दिया उसको. Yes, and that is how Lavani became a very itemish kind of thing हाँ. कि अगर कोई लड़की लावनी कर रही है मतलब तो ये ऐसी ही है, या कोई लड़की अगर लावनी परफॉर्म करती है तो वैसी ही है, बट वैसा नहीं था. तो कुछ लोगों की वजह से, इसीलिए जब मैं जब स्कूल में था या मैं कॉलेज में कंपटीशन में रहता था, तो अगर लड़कियां लावनी करती तो लोग उनको प्राइज नहीं देते थे, या लोग ना मुंह उल्टा कर देते थे, या लोग बोलते थे ही यार लावनी क्या, मतलब गर्ल्स यूज्ड टू टॉक लाइक दैट विद मतलब इन बिटवीन देम आल्सो कि यार उसने लावनी किया, कितना बुरा था, वो ऐसा हो गया था. बट देन आफ्टर नटरन केम अगेन, लावनी केम इनटू अप्सरा, आलियन वाजदे के अंदर लावनी अगेन केम इनटू एग्जिस्टेंस कि नहीं, लावनी का बैकग्राउंड. इसलिए मुझे लगता है कि हर आर्ट को जज करने से पहले उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली वो आर्ट कहाँ से आया है, वो क्या कहना चाहता है और वो क्या करना चाहता है, और वो आगे कैसे बढ़े. तो दैट्स व्हाई हाउ आई गॉट इनटू लावनी. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग रियलिटी शोज, मैंने सबसे पहले, मतलब आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि हिंदी रियलिटी शोज में आप कभी भी लावनी देखते हो, इट इज़ अ फ्यूजन, इट इज़ डन बाय मी, बिकॉज आई फील कि मैंने बॉलीवुड और लावनी का एक फ्यूजन लाया है, जिसको हम लोग बॉली लावनी बोलते हैं आजकल. बिकॉज आई थिंक मेरा ऑडियंस हिंदी भी है, मेरा ऑडियंस नेशनली है, इंटरनेशनल भी है, तो उनको लावनी मराठी नहीं समझेगा. तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टेक ब्यूटीफुल हिंदी नंबर्स एंड फ्यूज इट विद लावनी एंड प्रेजेंट इट इन अ वे दैट पीपल विल गेट टू नो दैट ओ दिस इज लावनी, अच्छा ये लावनी होता है. तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लावनी को लेके कि अरे क्या लावनी करते हैं, ऐसा है. बट टू टेल यू ऑनेस्टली, थिंग्स आर चेंजिंग. अगर पहले 50% लोग ऐसा बात करते तो अभी 90% लोग ही जो सपोर्ट भी करते हैं. कुछ 10% है, बट ठीक है, हमें उन पे ध्यान नहीं देना है. आई विल फॉलो द पीपल हु लव मी एंड नॉट द पीपल हु हेट मी. अरे सही है, सही है. Yeah. स्टार्टिंग में रील दे दी है. स्टार्टिंग में ऑनेस्टली मतलब आई फील कि आई ओन, मतलब मैं वो सब ओन करता हूँ जो मैं करता हूँ. इफ आई एम वेयरिंग अ कुर्ता, आई ओव इट. मुझे लगता है कि दैट इज व्हाट मेक्स मी एज मी. आय नीड, येस, मला असं वाटतं की मी असणं खूप गरजेचं आहे. मी कोणासाठी बदलणार, किंवा इफ समबडी वॉन्ट्स मी टू बी सम व्हाट दे इमॅजिन मी कि अरे तू तो लड़का है, तूने ये करना चाहिए, तूने वो, सॉरी, you can't tell me. My mother has never told me that. तो मुझे उतना, if you are confident with your body, if you are confident with your face, your color, your height, whatever it is, your size, it doesn't matter. When you are confident, you bring an aura. You bring an aura with you, and that's what I feel it matters always. सेल्फ एक्सेप्टेंस, मैं इसको बोलते रहते कि ब्रो सेल्फ एक्सेप्टेंस का अपने को कुछ तो करना चाहिए, बिकॉज पीपल डोंट नो, पीपल हैव अ इशू विद सेल्फ एक्सेप्टेंस. उसके वजह से रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आते हैं. Absolutely. उसके बाद ब्रेकअप्स में भी प्रॉब्लम आते हैं. उसके बाद बहुत से इशू होते हैं. पीपल गेट सुसाइडल एंड एवरीथिंग. Now we were talking about it, and you can also shed light on what happens when you have not accepted yourself. That's why, is it people turn suicidal or is it something else also? No, see, honestly speaking, मुझे लगता है कि we live in a society where we are judged on every point. Every point. Even we are educated, we say that we are educated, we talk about feminism, we talk about male masculinity, ये male है, ये female है. Then we talk about now, there are a lot of things coming as gender bias and what binary, ये वो सब चीजें हैं. But still people keep names to them. तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा अंडरलाइन कब होता है कि जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो. और इसलिए जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है भगवान ने रादर हर इंसान को ऐसा बनाया है कि उनमें कुछ खूबियां है, कुछ खामियां भी है, नहीं तो फिर हम भगवान होते. अगर हम में सब खूबियां होती तो तो हम भी भगवान, अगर भगवान ने भी गलतियां की है, हम अगर सब देखते हैं तो मतलब ऐसे इंसिडेंट्स हमको पता है कि जहाँ पे इंद्रदेव हमेशा कुछ गड़बड़ करते थे, विष्णु बचाने आते थे. तो गॉड्स सबने मिस्टेक्स किया है. बट आई फील कि एक्सेप्ट करना गलती भी, और उसको मानना और उसको सुधारना, दैट इज यू. जैसे मैंने पहले भी कहा कि यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट what you carry, either it is attitude, either it is your dancing thing, any profession. मुझे लगता है कि अगर आप confident enough नहीं हो जो आप कर रहे हो, जैसे आप आज यहाँ पे बैठे हो, अगर आप confident नहीं हो तो this doesn't make a sense. Exactly. Right now your confidence has given me a confidence to talk like this because we have created an aura which is positive. Why? Because you know who you are, I know who I am, right?
सो मुझे लगता है कि हर उस इंसान को मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, खुद से लव योर सेल्फ, बिकॉज nobody can love you the way you do. Nobody. Trust me on this. Because मुझे लगता है कि अगर हम रोज तैयार होते हैं, हम जब आईने में देखते हैं खुद को, तो हम खुद से बहुत प्यार करते हैं. वही प्यार अगर आप दिन भर कैरी फॉरवर्ड करोगे कि yes, today I'm looking good, today my day is going to be good, और मैं आज कम से कम खुद को खुश रखूंगा या खुद के लिए मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि रात को जब मैं वापस आऊं तब मैं सोचूं कि मैंने आज दिन भर क्या किया, ना कि लोगों ने मुझे क्या कहा, मैंने क्या किया. So when this happens, no, I feel ये चीज मैटर नहीं करेगी कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है या कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है. तो मुझे लगता है जब मैं रात को सोता हूँ, अगर मुझे रात को सोते वक्त ये समझ में आता है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया है, आज मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसमें से मैंने 4 लोगों के चेहरे पे स्माइल दी है, बिकॉज आई फील द वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल. इंस्टेड ऑफ हेटिंग, try to spread love, because the more you spread it, the more you will see the smile, and I think it is you who can change it. Why? Because when you change, the change will happen. Nice. Energy हो रहा है. The podcast has never been so energetic. यार क्या ही energy है यार. I'm loving this. संस्कार is like क्या आपने? तो शांत साल है. मैं तो यहाँ पे भी confident. He's like finding questions now. But yes, same question. You have seen this people like from the community only, LGBTQ. They sometimes force people to convert, or like force themselves on others, or like instead of love they try lust. And sometimes people get vulnerable and they do things and then they regret. So what's your take on that? See, honestly speaking, of course, I do support all kind of people. I do support the community also. I do support even the street people also. But right now, what has happened? The education has made you so beyond everything. Now, I tell you honestly, what has happened? Usually, people used to say that I'm straight. Right now, what people say that I'm bi-curious. Arey. So that is the word called as, the curious is the word, English word. Curious, सुनने भी बचता है, bi-curious, I'm bi-curious. So मुझे लगता है कि that has aroused a curiosity in all the straight individuals, whether it be a female or a male also, to try that thing at least once. Okay, now in India, what is happening is there are a lot of people in the community where they have good relationship for past so many years with an individual. किसी एक के साथ relationship है लोगों का, या कि कोई लोगों ने सीधा वो concept बना लिया है, जैसे कि हम लोग abroad का बहुत चीजें accept कर रहे हैं कि let's be open, let's have an open relationship. Then what open relationship does, it goes more towards the lust then, because as you're open to everything, अच्छा इसके साथ भी करना है, उसके साथ भी करना है, and then that become fantasy कि यार ये भी होना चाहिए. And now what has happened? And now what? Now what has happened? It more than the maja. What has happened is the social media has become so open right now. Like even now when we open an Instagram, a straight profile has a picture. अगर तुमने 2 apps बना लिए, लड़का अंडरवेयर पे खड़ा है फोटो में, and on top of that, उनका वही क्राउड है. If you go to their followers, if you go to their likes, उनका पास वही follower है, those who are from the community. Because you have exposed your body, because you are attracting a crowd, they are there. People will like you, people will comment you. Of course, there are a lot of vulgar comments also, people will comment. But then that is on you, how you tackle it. Okay. Now, when somebody from the community enters their DM and talk about, you have a good body and I want to have something like that and this and that, then at times people accept it. But what they say, जैसे मैंने कहा, bi-curious. Please don't tell to anybody. They want to explore it, but then फिर बोलते ना कि you want to have the cake also and keep it also. हाँ, मतलब वो वैसी वाली चीज है. दोनों बोट में. हाँ, मुझे कि दोनों depends what depends which flavor you want. That is different thing. But I feel कि what has happened is lust has overpowered the love. Actually, sorry, the line is like the lust has overpowered the love. Right now, what I still find 50% of people are looking for love. Then whether it is straight, the community, the LGBT community, everything, they're looking for love. They're looking for somebody who they hug. It is only a hug, or they can talk. घर वाला feeling. Because I tell you what has happened. The community, LGBT, straight का तो ठीक है. Even straight के साथ भी ये हुआ है. लोग डिप्रेशन में हैं. LGBT लोगों के साथ क्या होता है कि since the childhood they go to so much trauma
like the society talking about them छक्का, gay, हिजड़ा, बाइलिया, lesbian, what not. इस वजह से already they are so pressurized. अब अगर उनको कोई दो प्यार के शब्द बोल दे भैया कि you know अरे यू डू वेरी नाइस डांस, ओ अच्छा यू डू वेरी नाइस एक्सप्रेशन, आप बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो, आपने करना चाहिए, दे फील लव्ड एंड दिस इज हाउ दे वांट लव. कि लोगों को पैसे रस्ते वाली डैश भी कमाती है, बट लव एंड रिस्पेक्ट कमाने में बहुत टाइम जाता है. और मुझे लगता है कम्युनिटी में, कोई भी कम्युनिटी हो, इवन स्ट्रेट कम्युनिटी में भी ये चीज है, लाइक उनके बॉस उनको रिस्पेक्ट नहीं देते तो वो डिप्रेशन में जाते हैं, और उस वजह से देन दे गो एंड हैव सम एडिक्शन. Then it can be any addiction. It can be a bar, it can be a dance bar, it can be any female, anything can happen. और कौन कहता है कि स्ट्रेट वाले लोगों के भी लफड़े नहीं है? अरे कोई कमिटेड नहीं है भैया. मतलब मतलब that's what I'm saying कि the word right now we are so open to the feel that lust has overpowered the love, and love is missing right now because we have become so practical. We have adopted the Western culture so much that we have forgotten our vada pav and we have started eating burgers. हालांकि बारिश में वड़ा पाव ही खाते हैं, आप कितनी भी अमीर हो आप टपरी की चाय ही पीते हो, बिकॉज उसमें जो टेस्ट है वो सीसीडी में नहीं है, या कोई अलग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट कोई कॉफी में नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है उसमें प्यार है. और ये प्यार आजकल कम होते जा रहा है. तो मुझे लगता है कि कोई किसी को थोपना नहीं चाहता है, बट एट टाइम्स ऑफ कोर्स बॉडी हैज अ नीड ऑल्सो, वो होता है. अब वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसा लेते हो. यू नो, इफ यू रियली डोंट वांट इट, से नो. बट वेन यू क्रिब अबाउट इट कि यार इसने मेरे को ऐसा बोला, हाउ कैन ही टच मी एंड हाउ कैन शी टच मी, अगर कोई लड़की भी है, या देन यू हैव टू टेल देम कि आई डोंट लाइक दिस टच. इट इज एज सिंपल एज दैट. रिस्पेक्ट द थॉट. आपने रिस्पेक्ट कर लिया, बाद में वो हाथ भी नहीं लगेगा इंसान. इतने लोग एजुकेटेड है कम्युनिटी में भी. तो मुझे लगता है कि स्ट्रेट लोगों को लगता है कि अगर बंदा या बंदी यू नो दे आर गे और लेस्बियन, तो दे आर ओपन, दे आर ओपन शॉप दैट यू कैन कम एंड शॉप इनसाइड, वैसा. तो आई फील बदलना चाहिए. नहीं, बदल तो गए, बोला ना बाइक रेस हो गए लोग भैया. अभी जमाना आएगा, मेरे को लगता है कुछ सालों बाद लोग बोले अरे तू स्ट्रेट है, ऐसा होगा. मतलब अभी ऐसे होगा, बिकॉज आई फील ऑनेस्टली टेलिंग, जेन्युइनली, like even in my DMs I get messages of so many people, whether it is a girl or a boy or uncles. You know how it starts. Hi, hello, thank you, so you dance very nice, okay, thank you. Then when it comes to you look cute, Oh my god. then you know where the person has to enter. You know person को कहाँ घुसना है तुम्हारे, तो तुम समझ जाते हो. You know then it is on you. सी कैसे, अगर आपको कोई चूटी काट रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं मुझे दर्द हो रहा है, तो वो आपके ऊपर है. यू नीड टू पुट योर लाइंस एंड बाउंड्रीज सो दैट पीपल डोंट क्रॉस इट. और मैं यही कहना चाहूंगा सबको, सभी स्ट्रेट लोगों को सो कॉल्ड, कि उनको लगता है कि लोग हिट करते हैं. They don't hate, they just want that somebody they should love and they should talk with. And honestly speaking, मैं blame नहीं करूंगा, but I feel straight boys are more emotional than anybody. So that's why maybe the community people hate on straight boy because they have seen, अरे एक लड़का लड़के के लिए रोता है यार, तो मेरे लिए भी रोएगा यार, मेरे लिए भी जान देगा यार. तो वो वाली चीज है मुझे लगता है. बस that is the whole point. Nice. And coming about this, like other, like it's the juicy part, reality shows. उसका reality आपको जानना है. Now everything is gonna be open. अभी tease भी लगेगा. Not all. But yeah, of course. Please ask. जितना I won't ask. You tell. No, but still there might be something ना, मतलब Let's start from voting. Oh my God, उसका तो मेरा फिलहाल एक रील वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा. तो see, honestly speaking, I have done almost 15 to 16 reality shows where I have been as a contestant also, as a choreographer also. To tell you honestly, I have reached till the finals, but I have never won a show. I don't know why. I have got standing ovation for all the episodes. Okay, so I have 10 marks of all the judges, where judges are standing, shouting, coming and hugging us, and then I'm not in the finals, and then I'm not even winning the show. So apparently, जब मेरा सबसे पहला शो था जो मैंने किया था was एकापेक्षा एक on 2008 on Zee Marathi, when there was none of the reality जो अभी चल रहे हैं. That was the only Marathi reality show जिसके थ्रू फिर बाकी shows बने, मुझे लगता है.
एंड दैट टाइम ऑफ कोर्स आई वाज अ फाइनलिस्ट एंड वोटिंग का बहुत था और हम पहली बार थे तो मेरे फादर ने होर्डिंग्स लगाए, ये लगाए पूरे Yeah. कल्याण में। आई एम फ्रॉम कल्याण, तो कल्याण शहाड़ में सब जगह कल्याण स्टेशन तक होर्डिंग्स लगे हैं। Nice. क्योंकि कल्याण का कोई पहला केडीएमसी का कोई बंदा है जो टीवी में आया है, तो उनको मतलब कल्याण डुमली से कोई था नहीं तभी। दर्जा वो ऐसा हो गया था कि यार मेरा बेटा फाइनल तक है और पूरा 6 महीने हम लोग टीवी पे नाच रहे हैं, अलग अलग डांस फॉर्म कर रहे हैं, तो जीतना तो बनता है। एंड आई वाज सपोज्ड टू विन, सबको पता था। बट देन वही होता है कि देन जब हमको कहा जाता है कि आपको वोटिंग कम मिली है, तो मुझे लगता है कि ओके कम मिली है, कितनी मिली है। देयर वाज अ टाइम पहले बताया जाता था कि कि इतनी वोटिंग इस पर्सन को मिली है, लाख वोटिंग मिली है, 2 लाख मिली है, 3 लाख। अभी तो वो भी नहीं बताते। तो भैया मुझे तो वो मशीन देखना है पहले जहां पे वोट काउंट होते हैं, है ना, ताकि मैं देखूं कि किसको क्या वोट मिले। ओके, देन व्हेन यू एज अ कंटेस्टेंट, if it is my responsibility that I need to dance on the show and make the show a hit. See, कोई भी शो एक कंटेस्टेंट की वजह से हिट होता है, जजेस की वजह से नहीं। सॉरी टू से दिस, मतलब नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, आई एम सो सॉरी, बट मुझे लगता है कि अगर कंटेस्टेंट्स वो कैलिबर नहीं है, अगर वो डांसर्स नहीं है, तो आपका शो कोई देखेगा नहीं। हम शो क्यों देखते हैं कि अरे यार क्या नाचा है, उसको देखना चाहिए। एवरीवन हैज देयर ओन पर्सनल फेवरेट, राइट, वेदर सिंगिंग और डांसिंग। तो मुझे लगता है कि वोटिंग क्राइटेरिया क्या डिसाइड करता है कभी कभी कि पब्लिक में कौन ज्यादा फेमस है। ओके, और तब तक उस इंसान को फाइनल्स तक हम देखते हैं, और आपको जब लगता है कि यार ये इंसान जीतेगा, ये जीतेगा ही, वो कभी नहीं जीतता। आप ये लिख के लो, आई एम श्योर आपके दिमाग में चल रहा होगा अभी, लोग भी जो देख रहे हैं, कि कोई भी रियलिटी शो आपको लगा होगा कि यार ये आपकी फेवरेट है, ये जीतनी चाहिए, कभी नहीं जीती होगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, कभी नहीं। लाइक 100 मतलब 0.001% कोई जीता होगा जो लगा था लोगों को कि ये जीतेगा या जीतेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगेन द कॉन्सेप्ट कम्स कि हाउ इज द वोटिंग काउंटेड। तो मेरे लिए हमेशा क्वेश्चन मार्क है अभी भी। लाइक आई एम द इंटरनल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री राइट नाउ। लाइक आई नो द ऑल मशीन्स, आई गो इनटू द डिपार्टमेंट्स एंड एवरीथिंग। आई नो डीओपी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, ट्रॉली कहाँ आ रहा है, देन ऑडियो वाला क्या रिकॉर्ड कर रहा है, सब एवरीथिंग। बट ये वोटिंग का आई टेल यू ऑनेस्टली सिर्फ चैनल के एक आदमी को पता होता है और द प्रोडक्शन हाउस के एक आदमी को पता होता है कि क्या वोटिंग आया, उसकी बात किसी को पता ही नहीं होता। एंड देन इफ इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर शो अ हिट, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल मी कि कितना वोट आया है। Isn't that my हक? But obviously, तो मैंने ये पूछा कितनी बार जाके जब मैं आउट हुआ हूँ कि मेरे को कितना वोट मिला है। No, we can't disclose that. Why? That is my हक बनता है ना ब्रो, हक that is बनता my है। question. For example, अगर ऑडियंस मेरे को प्यार कर रही है, ऑडियंस बोल रही है कि यार मैं 100 वोट दे रही हूँ, तो अगर चलो आप काउंट बताओ, मुझे 10,000 मिले, अगर 100 ये दे रही है तो एटलीस्ट उनके घर में 10 लोग और हैं, तो मतलब मुझे एक घर से 1000 आ रहे हैं, मतलब 1000 अगर मैं एक घर से पकड़ू तो 10,000 तो मेरे को एक घर से आ रहे हैं, मतलब बाकी लोग क्या सोए? तो ना दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मेरा ये हक है। मैंने बहुत बार पूछने का ट्राई किया और फिर एक पॉइंट में मैंने गिव अप कर दिया। कि फिर मैंने क्या डिसाइड किया, जो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इंस्टेड ऑफ विनिंग एनी शो, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ विनर ऑफ एनी शो, लेट मी क्रिएट हिस्ट्री। Because more than winning, the history will always be remembered. People's champion. Yeah. मतलब मैंने आज तक जितना काम किया है ना, लोगों को मेरा काम याद है, लोगों को मेरा डांस नंबर्स भी याद है कि आशीष तुमने लल्लाटी भंडार किया था, या तुमने तुमने ये लावनी पे ये किया था, तुमने डोलारे किया था। तो एक सेकंड ना, या श्योर अरे देखा, नहीं। सो मुझे लगता है कि लोगों को ये याद रहेगा कि सी फॉर एग्जाम्पल when there was a freedom fight, लोगों ने ये देखा कि फ्रीडम फाइटर्स सब नहीं जीते, बट उन्होंने जो बनाया है वही तो हिस्ट्री हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, राइट? Not all kings have won the battle, but they have created something which will be studied. It is historic. So I want to be historic then I don't want to be just a winner and sit on the throne and just कि हाँ भैया मैं जीत चुका हूँ. No. Same with किस्से guys. Same with किस्से. I just don't want to sit on the throne. I want to see कि मैंने क्या create किया. What have, अगर मैं घर पे बैठूंगा तो मैं देखूंगा, oh wow, this has done by me. अच्छा ये कोरियोग्राफी मैंने किया है. तो लोगों को ये याद, और लोगों को याद रहता है. I tell you honestly, मेरा प्राइस कब होता है? When I go for workshops or when I go for events ना to perform, to see, I see people running towards me and telling me, अरे सर आपने वो दिलबरो परफॉर्मेंस किया था ना, अरे सर आपका ना वो लावनी. I feel happy. That is what I want. Recognizing your work. People should recognize my work. People should recognize my name by my work. And not just अरे ये शो जीता है, पर जीत के क्या उखाड़ लिया. करेक्ट. हर सीजन मैं आपको लिख के देता हूँ, आप कोई भी शो का विनर उठाओ, कहाँ है वो?
अरे हाँ हाँ, bro. वो लोग कोई भी शो का आए विनर रहते हैं। कुछ नहीं कर रहा है, क्वेश्चन एक्चुअली कोई शो का विनर कुछ नहीं कर रहा है. Correct. Those who have not won the battle, they are earning. And for example, the best example, Arijit Singh, धर्मेश Dharmesh, Raghav, Yeah. Puneet Pathak. I have lot of examples. Like there are lot many examples which I have seen in the industry also. जो कोई शो पे आए हैं, जो सेकंड लीड बन के आए, कभी हीरो नहीं बने, बट आज वो लीड कर रहे हैं, या यू नो दे आर डांसिंग. वर्तिका झा नेवर वन अ शो, बट वर्तिका इज द क्वीन ऑफ डांस. मतलब when she dances, people just go crazy with her. Like anybody, what I've seen कि so उन्होंने भी क्या किया, सब लोगों ने क्या किया कि उन्होंने वो 3 मिनट ना जिंदगी के जिए. मुझे लगता है आप वो 3 मिनट ऐसे जियो कि आपको पता होना चाहिए कि कल आप शायद रहो ना रहो, तो लोगों को क्या याद रहेगा, अरे इसका लास्ट परफॉर्मेंस ये था. मतलब मैंने तो ये भगवान से मांगा है कि अगर मैं मरूंगा भी ना तो मुझे वो स्टेज पे मरना है, या मुझे कोई कुछ परफॉर्म करते हुए मरना है, बिकॉज दैट इज व्हाट गॉड हैज गिवन मी अ गिफ्ट ऑफ आर्ट एंड आई वांट टू डाई वर्शिपिंग इट. और मुझे लगता है कि मेरे लिए इसलिए वोटिंग अभी काउंट नहीं करता, पहले था एक, बट अभी मुझे लगता है कि मैं अगर लोगों का दिल जीत रहा हूँ तो मेरे वोट्स वही है. बट ऑनेस्ट स्पीकिंग रियलिटीज में वोटिंग का क्या फंडा है मुझे आज तक नहीं But पता. recent Big Boss मध्ये MC Stan was the winner. Yes. But what will your take be, because he was a people's Yeah, champion also, yes. and he's I have a good take on that. So apparently I was following the season because Shiv Thakre is like my small brother. Because I do a lot of Marathi Big Boss ka grand opening and the finale. So it's been 3 seasons I'm doing the whatever opening you see is choreographed by me. He's very sweet. He's तो दसा है तो दसाच आहे. He's the same what he has portrayed it. And I was watching the show for him. बीच में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था वो. But of course it is a house where you get very emotional and at times you don't know what is happening, because मैं देख चुका हूँ लोगों को वहाँ पे अंदर. एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, तभी मुझे लगा था कि मुझे लगा ही था कि ही वोंट विन द शो, ही विल बी टॉप 2. हु इज शिव? I know, but MC तो मेरे तो he was not in the thought only, but yes, he was people's choice as the channels say. Okay, as the channels say. I don't know how true it is, but even if he was a people choice in the show, I have never seen, because I'm nobody to talk about him. He has done his good work and whatnot. But I think कि मेरे लिए शिव ठाकरे was the winner, and yes, then अगर channel कह रहा है कि people's choice से वो जीता है, बट पीपल चॉइस शिव के साथ भी था मुझे लगता है, इसलिए शिव टॉप 2 में था. बीइंग अ महाराष्ट्रियन गाय एंड डन अ मराठी शो एंड नॉट इवन एस्टैब्लिश इन हिंदी, एंड मतलब हिंदी में शिव को बहुत कम लोग पहचानते थे. मुझे लगता है ये शो ही है जिस वजह से लोगों को पता चला कि शिव ठाकरे है कौन. Like I have been to Nagpur and Amravati when I was doing a workshop. So I have been to his home also. Very simple family, typical Ai, Ajji, Baba, Tai, a very simple family. And then this boy comes like this with the same attitude, what the family has taught him. So मुझे लगता है कि of course I had a lot of support, and तो मुझे लगता है कि when you say that public की वजह से कोई जीता है, तो public की वजह से दोनों ही जीते. ऐसा देखा जाए तो बस कोई एक ट्रॉफी लेके चला गया. तो मुझे लगता है कि ठीक है. Against people champion. People. I think so. Shiv was the people's champion. Yeah. That you can say, because then everybody knows that everyone is talking about कि how people have played their own games. So let's not go there because I'm nobody to talk about it. क्या पता मैं ही कल बिग बॉस में आ जाऊँ. I was No, of course they are asking me, but no, I am already busy with something. But yeah, but you never know. कुछ भी हो सकता है. But Big Boss, I don't know. I will definitely. Realities are my. मतलब मुझे करना अच्छा लगता है, but they're my cup of tea. They're my not cup of tea. I think Big Boss is not the show which I will do, because I'm not made for that. Maybe I'm very talkative and ऐसा, but I'm very emotional also. I might crash in a week because I'm very like mama's boy, and then I need my friends. Family. I need to talk to people, and I need because in my life I have been to so much negativity, and then being a positive person now इतने साल अचानक वापस वो face करना, I can handle everything, but then I will be a very mum person, which I don't want to, because I'm not like that, and I can't. And of course that show is something which is an image making or an image breaking show. So correct. So People it's very, how take it. yeah, it's very थोड़ा सा डर लगता है शो पे, पता नहीं. और मेरी माँ को सीधा कहा है कि if you're doing that show, take your bag and get out of the house. So my mom has already told me that कि आम्ही जेव्हा नसू तेव्हा तू ते शो कर, ठीक आहे, आता नाही करायचं आहे. Now I want to hear some kisses. Basically kisses about kisses ना. तो असं काहीतरी किस्से सांग जे I want to hear about reality shows जो personal experience है, funny, sad
And सब। ऐसा कुछ, हाँ सब So सबसे पहले तो मैं जाऊंगा रियलिटी शोज के ऑफ कोर्स टैलेंट पार्ट पे, ओके जो बहुत लोगों को लगता है. तो ऑनेस्टली देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट व्हिच वी हैव इन इंडिया, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट एंड आई फील कि हर टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिलना भी ज़रूरी है. बट कभी कभी क्या होता है, ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव टू टेक टॉप 2 ओनली और टॉप 12 ओनली और टॉप 15 पीपल, you can't have everybody, but of course there are n number of dancers who come and we have good talent also. और कोई कोई टैलेंट ऐसा होता है जो कच्चा भी होता है, जो शो में लाया जाता है और फिर वो पक जाता है हाँ. एंड तक, एंड दैट इज आल्सो देखने के लिए पूरा कि जर्नी होता है एंड दैट इज एंड दैट इज हाउ पीपल कनेक्ट टू देम आल्सो कि अरे मैं भी ऐसे ही नाचता था बट अभी देखो ये बदल सकते तो मैं क्यों नहीं बदल सकता. So reality somehow now gives you confidence also and a validation also that what you are doing basically. So reality shows are right now I feel it is a validation for people to कि लोगों को पता चले कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये ऐसा करता हूँ और ये लोगों को पसंद आ रहा है. So that is a validation, that is an underline कि yes I'm a good dancer. Now what the second part comes is the emotional background of the reality, you know, then they have a story of all these people, you know, that is तो सबको पता है. डॉक्यूमेंट्री चला देते हैं पूरा पीछे। मतलब मेरा भी चला है, ऑफ कोर्स मेरे पिताजी का और मेरा बहुत चला है, बट वो सच ही था. मतलब क्या मतलब लोगों ने बोला था कि ये बहुत ही जरा ड्रामेटिक था, बट सी ऑनेस्ट स्पीकिंग किस्से होते हैं सबकी लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल आपके लाइफ में भी होंगे, मेरे लाइफ में भी है. जैसे मेरे लाइफ में था, जैसे मैंने कहा कि बीइंग अ मेल क्लासिकल डांसर इट वाज अ टैबू एंड माय डैड नेवर लाइक मी डूइंग अ क्लासिकल डांस. So of course he never supported me. So that is what my story was, very simple. But then the creatives and the channel make it so happening कि my dad comes on this platform and then I see my dad and then I cry. वो होता है because that is a emotional touch. और कभी कभी क्या होता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली आई विल से, एंड उनके भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और उनको जब ये प्लेटफॉर्म मिलता है तो हमें भी खुशी होती है, यू नो, उनको देख के कि यार इनको मिलना चाहिए यार. मतलब देयर वाज सो मेनी पीपल आई हैव सीन जो गरीबी से, यू नो, दे फ्रॉम द लोअर फैमिली, दे हैव कम एंड दे आर डूइंग गुड फॉर देमसेल्फ नाउ. और मे बी रियलिटी हैज हेल्प्ड देम इन अ वे, it helps also. But as an audience, of course, we connect to those people who you feel very genuine when they cry. Who feel मतलब कभी कभी आजकल ऑडियंस, मतलब मेरे मम्मी पापा का तो ऐसा हो गया आजकल कि अरे यार ती रडली म्हणजे ती झिंगणार बक्षो. So it is so it is like that. So मग तुम्ही का रडत नाही, आणि म्हणजे रडायचं म्हणजे रडायला आला पाहिजे ना, म्हणजे रडायचं का उगाच. तो मेरे को लगता है कि एट टाइम्स येस लॉट ऑफ थिंग्स आर, वो मोमेंटल हो जाता है. हम भी रोते कभी कभी वहां पे बैठे बैठे, हमें भी रोना आता है. अगर कोई फैमिली मोमेंट होता है तो आता ही है, बिकॉज वी आर अटैच टू, वी आर इंडियंस, कम ऑन गाइस, वी आर अटैच टू आवर फैमिली. बट कभी कभी मोमेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि हमको दिखता है कि ना मेड अप हुए हैं, तभी बहुत बुरा लगता है कि यार उससे ज्यादा मोमेंट किसी का था, वो नहीं दिखाया गया क्योंकि किसी और का मोमेंट दिखाना था. ऐसा भी हुआ है कभी कभी लाइफ में, और वो बहुत बुरा लगता है देख के. और फिर कभी कभी लगता है कि उस इंसान को सपोर्ट करने के लिए फिर चैनल ऐसा कर देता है कि भले वो बुरा भी नाचे तो भी वो फाइनल तक रहते हैं, क्योंकि देन दे हैव क्रिएटेड दैट थिंग. सो वो बुरा लगता है कि यार देन ओके आपने उनको एक्सप्लोर कर दिया, उनको एक नाम मिल गया, देन नाउ लेट्स द कंपटीशन बी हेल्दी ना. दैट इज व्हाट आई फील, इट हैज टू बी हेल्दी. कभी कभी हमारे साथ भी होता है, हमने बुरा नाचा बट फिर भी हमको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, होता है सबके साथ, वो एक आध बार होता है. बट मुझे लगता है कि नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज रियलिटीज आर नो मोर रियल, आई फील. मतलब व्हेन दे से अबाउट वोटिंग, व्हेन दे से अबाउट जजिंग, आई फील कि अगर पब्लिक ही डिसाइड करने वाली है कौन जीतने वाला है तो जजेस का क्या काम है. It's mostly story based right now, no? No, that is there. That is so there. That is from the first. Even when I was in the reality, it is story based only. बहुत पहले से चल रहा है वो. मतलब when it was a boogie woogie also. तभी भी जावेद जाफरी used to talk about कि आप क्या करते हो, अच्छा आप ये करते हो, आपके तभी भी story था. But that was a very shortcut story and that was more of dance. Like I tell you honestly, ये सब मानेंगे, all the dance fraternity will accept this, that boogie woogie was one of the show which was a pure dance show. जहाँ पे डांस होता था, जहाँ से मैं, धर्मेश, अलीशा, जय कुमार नायर, पॉल, राहुल शेट्टी, एवरीवन वी आर फ्रॉम बूगी वूगी बैकग्राउंड. इसलिए हम लोग ना नाचते हैं, हम लोग स्टेज पे 3 मिनट नाचते हैं, हम लोग कोई प्रॉप पे नहीं चढ़ते या हम लोग कोई स्टंट नहीं कर रहे, हम लोग नाच रहे हैं. मतलब इफ यू सी राघव आल्सो ही परफॉर्म्स. हैव यू एवर सीन राघव डूइंग अ कार्टव्हील? हैव यू एवर सीन डूइंग अ फ्लिप? नो. हैव यू एवर सीन धर्मेश डूइंग अ फ्लिप? That's what I'm saying कि even Vartika also, she dances. That is what I call कि pure dancing. तो Boogie Woogie was one show which was, you know, ऐसा show वापस आना चाहिए कि डांस पे करो से. See, there is a theme always for a dance. पर मुझे लगता है कि now what I feel is कि हम वहाँ पे बैठे रहते हैं और हमको दिखता है कि कोई बुरा नाचा है और फिर भी उसको बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, या you know, हम लोग का ऐसा होता है कि यार हम
हम लोग गधा मजूरी कर रहे हैं मतलब येडे आहेत आम्ही. हाँ म्हणजे सी Yeah, सी लिहिलंय आमच्यावरती असं तर आणि एंड देन व्हाट द पॉइंट वाज कि अगर फिनाले में ये डिसाइड किया जाता है कि वोटिंग काउंट कर रही है तो इतने एपिसोड जो जजेस के लिए बोलते हैं देते हैं. या आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है डजंट दैट काउंट देन हाँ. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हर एपिसोड में स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है एक हाथ छोड़ के मतलब मेरे पास 50% जजेस के पूरे हैं और अगर 50% आप वोटिंग पकड़ते हो और अगर मुझे समझो 10% भी मिला है तो मेरे पास 60% तो है. अच्छा जीता कौन बंदा है जिसको जजेस ने सिर्फ देख दो बार स्टैंडिंग ओवेशन मतलब उनके पास 10% है और अगर आप बोलते हो ये जीता है पब्लिक वोट की वजह से अगर उनके पास 50 है मतलब उनके भी 60 हुए मतलब हम इक्वल बेसिस पे ही हैं तो जीते कैसे. स्टैंड अप होना चाहिए था अभी. अरे यार वो मजा आएगा मतलब रियलिटी शुड बी लाइक रियलिटी It तो should भी be. और मजा आएगा. प्रोड्यूसर्स गाइस हाय यू कैन हायर अस वी कैन गिव यू आइडियाज. No, reality is, of course, there are good time. And the best thing is that they give you a platform, they give you a name, they give you fame, and then it is on you how you take it. टेक इट यस So it एग्जैक्टली. is how you make it. Like for example, I am been to realities. मेरे साथ कितने लोग थे, but आज मैं नहीं देखता उन लोगों को या वो लोग जॉब कर रहे हैं उन्होंने डांस छोड़ दिया है because they were not even confident या even इतने confident because वो टाइम था उनका सिर्फ हम अभी इतना करेंगे उसके तो maybe they never use that fame. You know that is what I feel कि reality gives you a lot of things. It is on you how you take it. ये मेरा कहना है. तो मैं बाकी चीजों को ठीक है जो जीता वो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मुझे बहुत मिला है मुझे नाम मिला है मुझे रियलिटी ने आज मैं जो हूँ आज मैं यहाँ पे भी हूँ आज लोग मुझे इंटरनेशनली नेशनली पहचानते हैं. आशीष पाटिल इज जस्ट बिकॉज द रियलिटी शो. तो इसीलिए मैंने वही कहा कि आई लाइक टू मोर देन दिस क्या चल रहा है शो के अंदर आप क्या कर रहे हो एज अ पर्सन एज अ आर्टिस्ट व्हाट यू आर डूइंग व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू द शो. कभी कभी क्या होता है ना आपका कंट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि अगर किसी ने चैनल ने या किसी ने प्लान भी करेगा ना आपको निकालना इस एपिसोड में आप नहीं निकलते हो. ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मुझे पता था कि इस वीक मुझे मैं आई वाज गोइंग टू बी आउट बट आई वाज इन माय हेड सो मच बिकॉज मैं हमेशा जो स्टेट रहता हूं आई वाज लाइक कि दिस इज माय लास्ट परफॉर्मेंस एंड आई हैव टू किल इट एंड वी किल्ड इट एंड वी गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन. एलिमिनेशन नॉन एलिमिनेशन एपिसोड दैट डे. समझ रहा है मतलब किसी को बचाने के लिए नॉन एलिमिनेशन ही हो गया. सो ये मुझे लगता है कि ठीक है दैट इज हर जगह होता है. पॉलिटिक्स की रियलिटी में ही नहीं है पॉलिटिक्स ऑफिसेज में भी होता है आईटी कंपनीज में भी है. कोई किसी का बहुत काम कर रहा है बट उनका इंसेंटिव्स नहीं बढ़ रहा है या बॉस कुछ नहीं सुन रहा है या लड़की को ही प्रमोशन मिल रहा है लड़कों को कुछ नहीं हर जगह है ये. सो व्हेन द वर्ड कम्स इक्वल राइट्स के बारे में तो मैं हमेशा सोचता हूँ यार ऐसा कुछ नहीं है. गलत है ये गलत है. और हम जो चिल्लारी कर रहे हैं ना कि मुझे ये नहीं मिल रहा है मुझे वो नहीं मिल रहा है सबको सब मिल रहा है सिर्फ हम वो दिखा नहीं रहे अच्छे से. दैट इज हाउ इट इज. सही संस्कार you have not asked a single question. I was like, शांत हो गया. so much into kids. not Oh my god, ये बोलते ना ऐसा ज्ञान मिल रहा है ना जो मैंने सुना है like oh my Maybe it's 18 to 19 years of experience and I guess I have grown बहुत जल्दी ही मतलब I have become matured in a very early stage of my life because life has taught me so much and there was situations where I feel आज अब आपको लग रहा है ये मेरी एनर्जी जो है I was a depressed kid. I had been into depression. you talked about suicide also, right? Yeah, I want you absolutely. to talk about that also. You see, honestly speaking, as I told you, I was a male classical dancer, and that time, like in the 1990s, जब मैं school में था, मतलब my first dance was a female dance. My mom had decked up me nicely, and I did this हमें राय प्यारे का song. I remember still. Bombay से गई पूना, like she wanted me to dance like a Juhi Chawla. So I was like okay, but I was this small, like I was in second stand or something like that. But मुझे लगता है कि what my mom saw was that I'm not just a dancer. She always tells me now also की आशीष ना डान्स सगळ्यांना जमतो, पण ग्रेस ना गिफ्टेड असते. तुला ग्रेस गिफ्टेड आहे म्हणजे हे काहीतरी वेगळं आहे. सो माय मदर हॅज ऑलवेज backed me like anything, like not all, see every male and every female has some masculine part, a female has, even a male has some feminine part. That's why we cry also, right? That's why even a girl can be a strong woman to hit a boy, you know. पर किसी में उसका मिक्सचर बहुत इतना इक्वल हो जाता है कि देन किसको समझ में आता है किसको नहीं समझ में आता है. शिव एंड शक्ति basically. So I feel then what my mom has told me is कि अर्धनारीचा जन्म प्रत्येकाला नाही मिळत. If you have got it, embrace it and make a good out of it. That is what she has always told me. And I feel ki that is she
म्हणजे मी खूप लहान होतो तेव्हा, व्हेरी स्मॉल, जेव्हा आमच्या घरी गुरुवारची पूजा असते, श्रावण महिन्यात त्याचा गुरुवारची पूजा ऑलवेज. सो शी यूज्ड टू सिट एंड रीड दैट पोथी एंड एवरीथिंग, लॉट ऑफ स्टोरीज इन दैट पोथी व्हेन शी. सो मैं बचपन से वो सुनता हूँ, तो उसमें भी मैं हमेशा मेरा रहता था कि यार ओके, भगवान के साथ भी ऐसे हुए चीजें, एंड हाउ गॉड हैज ऑल्सो फेस द थिंग, एंड देन हाउ गॉड हैज ओनली हेल्प द पर्सन. म्हणजे सत्यनारायणची पूजा का करतो आपण, व्हाई डू वी सत्यनारायण इन द हाउस, बहुत लोगों को नहीं पता है. या घर पे शुभ लाभ क्यों लिखा जाता है, आपको पता है शुभ लाभ क्यों लिखा जाता है? नो. व्हाट इज शुभ लाभ? शुभ ब्लेसिंग्स रहता है ना. नहीं. लाभ इज लाइक प्रॉफिट, गुड थिंग. तेच बोलला तो. नाही, शुभ लाभ गणपती के बच्चों के नाम है. Oh wow, this is new for me. येस. तो शुभ आणि लाभ म्हणजे गणपती, म्हणून आपण जेव्हा घरात प्रवेश पण करतो, हातात गणपतीची मूर्ती असते. सो दॅट गणपतीच्या आशीर्वादाने त्याच्या मुलांना जो वरदान आहे, शुभ असावं सगळं आणि लाभ मिळावा फॅमिलीला, म्हणून शुभ लाभ लिहिलं जातं. हे खूप कमी लोकांना माहिती आहे, आय नो, पण ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट आय हॅव लर्न फ्रॉम माय मॉम. सो आय एम व्हेरी रिलिजियस ऑल्सो इन अ वे, आणि त्याच्यामुळे आय फील की religious thought and religious support has helped me so much in my life that there was a time when I was so out of ki why I'm even born, mera janam hi kyun hua hai, because when I'm going to school, but the boys are teasing me. When I'm going to school, that I don't have friends, bullying around, I don't have friends. Like मैं घर पे भी जब आता था तो मैं अकेला पढ़ाई कर रहा हूँ बैठ के, कोई मेरे साथ बात करने के लिए नहीं है. Like people do group studies also. मैंने कभी जिंदगी में ग्रुप स्टडी नहीं किया, बिकॉज मेरा कोई फ्रेंड ही था नहीं, तो मैं ग्रुप स्टडी क्या करूंगा. ग्रुप स्टडी या मतलब ग्रुप स्टडीज होता है, मतलब मैंने हमेशा, मेरी क्लास में भी रहते थे कि अरे वी आर गोइंग टू ग्रुप स्टडी, तो मैंने कभी सुन लिया तो मैं बोलता था कि अरे मैं भी आऊँ क्या, तो मुझे नहीं, तो ऐसा नहीं बोलते थे. क्राउड से ऐसा नहीं बोल, ऐसा वो बॉयकॉटेड फ्रॉम एवरीवेयर. सो नाउ व्हेन यू नो द फीलिंग ऑफ not being loved, not being accepted, and you are all alone, then why are you born? You feel at times, na? And there was a time when I was so much into that thing ki why I am born. So it was when I was in 8th standard, I tried my first suicide. So apparently I did 3. So 8 was my first, and then apparently it was after 12th standard, and then TY kind of stuff where I crashed out completely, because then dance was something which always gave me happiness. When I was dancing, I was me. I was, वो बोलते ना कि डांस टू एक्सप्रेस एंड नॉट टू इम्प्रेस. It was also an escape for you. Correct. Absolutely line word. So मुझे लगता है कि when I, मतलब मैं जब भी गाना लगता है, I am somebody else. मैं कुछ और हो जाता हूँ. और जब मैं गाना रुक जाता है, मैं कुछ और हो जाता हूँ. तो मुझे लगता है that transition ने मुझे हमेशा, तब कॉलेज टाइम में मुझे पता चला कि okay, this is what is giving me happiness. Apparently I wanted to do MBBS. बट फिर ऑफकोर्स डांस हैज टेकन ओवर मी लाइक एनीथिंग. और मुझे लगता है ये सब प्रोसेस में ना, मैंने कभी प्यार नहीं कमाया, मैंने हेटरेट बहुत लिया लोगों से. अच्छा. बहुत ज्यादा. तो मुझे लगता है मैं इतना फर्म हो गया, या इतना स्ट्रांग हो गया, या इतना बड़ी मैंने दीवार बना ली है सामने, कि अगर कोई सामने से मुझे प्यार भी कर रहा है तो मैं वो ले नहीं पा रहा हूँ. आदत क्योंकि अभी मुझे वो डर लगता है कि कोई मुझसे प्यार से बात कर रहा है तो शायद कुछ फायदे के लिए बात कर रहा है. अभी वो वैसा हो गया. दैट्स व्हाई मे बी आई एम स्टिल सिंगल, और मे बी आई डोंट नीड एनीबॉडी, बिकॉज आई नो दैट आई कैन बी अलोन. I can sit alone, I can watch TV, I can have a wine glass, I can sit alone in my room, and I can not even watch the phone also. Like मैंने उतना खुद को ऐसा बनाया है. And there was this special moment in my life, like when I attempted the 3rd one. So I was saved somehow, and ये मेरे माँ बाप को पता ही नहीं था मैंने सब चीजें की है. अरे ये इसमें ऑफकोर्स टेलीविजन में जब मैंने पहली बार बताया था तब पता चला मेरी माँ को, और ये अभी ऑफकोर्स जब मैं इंटरव्यूज देता हूँ या अभी मैंने पॉडकास्ट में बोला है तभी मेरी बहन को पता चला कि आई हैव डन समथिंग लाइक दिस. किसी को पता नहीं था ये. और देन आई वाज क्राइंग. आई वेंट टू टेम्पल, हमारे यहाँ पे बहुत फेमस टेम्पल टिटवाला मंदिर गणपतीचं, आणि सो मैं मन्नत कहूँ गणपति के, ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया. सो मैं वहाँ पे बैठा हूँ, मैं रो रहा हूँ, आई एम जस्ट सिटिंग, एंड मेरी आंखों से आंसू जा रहे हैं. एंड देयर वाज नोबडी इन द आफ्टरनून, and this man comes in a dhoti and like pujari honge of course. Then he comes and he sits beside me and he's like, की काय झालं बडा असं, what happened? He was like की नाही असं असं आहे बाबा, असं असं होतं, मला काय कळत नाहीये, why I'm born and nobody's talking to me. My parents also know, only my mom is talking, but my dad के सामने उनका कुछ नहीं चलता है. तो I think I should, and नहीं. तो then he was the person who said me that line which I mentioned it before also, कि every man or every individual is born for some reason. Once you start discovering that reason, and once you get to that reason कि ये मेरा reason है, हे माझं कारण है, किंवा मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मुझे
लोगों को खुशी देनी है, मेरे कले के माझी जी कला है, मेरे ये आर्ट के थ्रू मैं लोगों में खुशी बांट सकता हूँ, देन तुमसे बड़ा इंसान कोई नहीं है, भगवान भी नहीं, बिकॉज भगवान को तो सिर्फ मूर्ति है। अगर आप इंसान को इंसान की खुशी दे सकते हो तो आप भी भगवान समा जाएंगे। And I tell you honestly, I felt so good. See, I still have a goosebumps. I still felt so good. I came out the next day morning again. I visited temple कि मैं एक इधर पुजारी ना भेटूं कि खूप बरं झालं तुम्ही. Since that day, I have never seen that man there. Oh, nice. So I still have that feel. मला अजून भी डोळे when I frustrated ना I still closed down. I imagine that moment कि oh नहीं किसी ने मुझे कुछ बोला. Because I feel तो काहीतरी चमत्कार होता की काय होतं मला माहित नाही. That was something else because then I asked people also there pujaris की ते असे उंचसे आणि नाही असं कोण नाही आपल्या इकडे. And then was like की oh अच्छा. Then I was like so मुझे लगा की yes something maybe it was a message through somebody that he's trying to tell me so many years but I'm not listening it. And then he has to come in some way and tell me that कि नहीं भैया ये कर, यही तेरा है, this is you. The dance is you. You can't leave this, no matter what happens. So ये किस्सा तो मेरी लाइफ का सबसे मतलब eye opening. बहुत ज्यादा. And then I have transformed from a negative to a person who I am right now. That I don't give a shit about anything. I don't think about anything because I feel you have to help yourself. Nobody is going to come and help you and run your kitchen. आपको आपका EMI भरना है. कोई आने नहीं वाला है आपको. So मुझे लगता है कि आपको ही आपका EMI भरना है, कोई आने नहीं वाला है आपके पैसे भरने के लिए. आपको ही आपके फैमिली को संभालना है, कोई और नहीं आने वाला है, कोई नहीं आता. So that's why love yourself, think about yourself and live your life. I will add on be your own diapers. खूप वाईट होतं ते पण या That's संस्कार for you. डायपर नाही पण मला असं वाटतं की वही है, मैं बोलता हूँ ना कि आप जो हो आप ही हो सकते हो. लाइक यू कैन बी यू, नोबडी कैन बी लाइक यू. माधुरी कैन बी माधुरी, कटरीना कैन नॉट बी माधुरी, कटरीना इज कटरीना. सो आशीष इज आशीष, यू आर यू, एवरीबडी इज आप हो. तो आप वैसे ही रहो ना, क्यों किसी के लिए बदलना है. और अगर आपको कोई चाहता है बदल के प्यार करे तो वो प्यार नहीं होगा. ये डायलॉग है पिक्चर का. बट फिर वो सिर्फ कंडीशनल है. मतलब वो अगर आप करेक्ट, क्योंकि मुझे लगता है की आपका जो मेन स्वभाव आहे, आपला जो मूळ स्वभाव असतो तो कधीच बदलू नाही शकत. Being any individual, you go to abroad country also, if you have the habit of touching every day God's का feet या pray करना, वो होगा ही, because वो आपके संस्कार में ही है. तो मुझे लगता है कि nobody can stop that. तो आप कितना भी बोलो कि मैं अभी लंदन गया हूँ, so I'm only having my pizzas and burgers. Oh, accent. Yeah, but वही एयरपोर्ट पे आके यार एक ठेपला खाते, ठेपला या थोड़ा चपाती यार दाल चावल खाते. So मुझे लगता है मूल नेचर कधी बदलणार नाही आपला. That is what people should understand. Yeah, like it's your journey. जो बाद में भगवान ने जो बोला आपको कि नहीं ये तेरा पर्पस है. It started and see how it started and how it is going, and I'm so happy about it. And I'm thinking मुझे वो सबसे ज्यादा खुशी हुई कि I have inspired so many people right now. I've inspired so many guys right now who are into dancing career, and even the girls also. Like when I see my workshops, like now I have like 50 to 50 plus students in every workshop we have. And everyone coming and talking only about your personality, about how good soul you are, how pure you are. But then this, वो बोलते हैं ना कि हीरे को थोड़ा सा, तो मेरे को लगता है मैं इतना खिंच चुका हूँ कि अभी वो मेरे को लगता है हीरे का कुछ छोटा छोटा पार्टिकल्स ही बचा है जो इधर उधर घूम रहा है. मतलब मैं नहीं बोलूंगा और घिसना बाकी. लाइक आई एम 35 राइट नाउ और बहुत जीना है मेरे को और बहुत कुछ करना है जिंदगी में. बट आई फील आई विल कीप इंस्पायरिंग whatever people say, and I am so thankful to all my haters, to all the people who will also comment on this video down with all the hatred speech that keep hating me so that I can keep proving you wrong. Oh my God. No, I was have this line की don't क्या बोलते हैं मेरे पे डाउट मत खाओ. I love to क्या बोलते हैं prove you wrong. Don't challenge me, फिर मैं करके दिखाऊंगा ये. It happened. इससे का भी वैसे ही हुआ था. पीपल लाइक क्या कर रहा है ये, क्यों जा रहा है एक 2 घंटे. I'll be like ठीक है भाई. नहीं मैं बोलता हूँ ना, नेगेटिव. आई टेल यू ऑनेस्टली क्या है फिलहाल हमारी सोसाइटी में क्या है. आई टेल यू ऑनेस्टली, देयर वी हैव जजेस एट होम. देयर आर पीपल हु आर सिटिंग एज अ जज इन द होम, जो खुद का नाम भी कभी मेंशन नहीं कर सकते, जो खुद का फोटो नहीं रख सकते अपनी आईडीज पे या व्हाटएवर दे आर कमिंग फ्रॉम कमेंट्स. दे मेक अ फेक आईडी
to comment for people. And because I tell you, it is their insecurity. Because they have seen you, they have bullied you at a time, and now when they see your success, they feel यार ये तो बढ़ गया है, तो अभी मैं कुछ ऐसा गंदा लिखूं ताकि लोगों को भी समझे कि ये ऐसा है. तो मुझे लगता है कि उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो मैं हूँ, जो मैं मेरे माँ बाप के लिए हूँ. एंड ऑल्सो वन थिंग आई विल लाइक टू ऐड हियर एज यू आर यंग एंड पीपल हु आर वाचिंग मी राइट नाउ कि आई फॉरगॉट इट. काय टॉपिक चालू होता आपला? So you were gonna tell something which you wanted to add specially? नाही पण त्याच्यावर काय चालू होतं? अरे की हेट पसरवतात ना तुमचे जे आधी घरातले जज असतात. हाँ, right. I got it back. I'm so sorry. It's okay, So, it happens. yeah. So the topic is that कि जिंदगी में ना गिन के ना 5, ये अपनी गिन के कितनी उंगली है? 10. Yes. ओके, सो गिन के इतने ही लोग रखो जिंदगी में जिनका बोलना या जिनका कुछ एक्शन आपको इफेक्ट करे, ताकि ये आपके माता पिता बहन भाई दोस्त सगे संबंधी में से कोई व्हाटएवर इट इज. तो मैं मेरी लाइफ में तो गिन के 10 लोग ही होंगे, तो मेरे को लगता है ये 10 लोग अगर मुझे कुछ बोले ना तो मुझे फर्क पड़ना चाहिए. इसके अलावा अगर मुझे कोई कुछ बोल रहा है उसका मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दे स्टैंड नोवेयर इन माई लाइफ. दे वर नॉट देयर व्हेन आई वाज सिक टू गिव मी मेडिसिन. दे वर नॉट देयर व्हेन आई वाज क्रैशिंग डाउन and I needed a hug and I was crying. They were not there. They were not there when I was not able to achieve anything, when financially I was not stable, when I was traveling without tickets. They were not there to support me financially. So right now you should not be bothered about what the surrounding is telling. You should be bothered about these people. So जिंदगी में ना गिन के friends भी 5-6 रखो या 2-3 रखो, पर ऐसा रखो ना की भाई दर्जा हाँ, म्हणजे मला असं वाटतं की दॅट इज व्हॉट वर्क्स. और आजकल ये समझना बहुत जरूरी है. आई फील यंगस्टर्स गेट सो डिप्रेस्ड इजीली. मतलब मेरे डीएम्स में बहुत सारे बॉयज गर्ल्स मैसेज करते हैं कि सर मेरा ये नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं. अरे भैया तुम 19 साल के हो अभी तक. अरे I'll tell you he has a story. ये स्टोरी है कल की परसों वाला. दिस गाय हु लाइक 10th पास किया अभी एंड ही इज लाइक सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया, और आराम से बोल रहे कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, वो पंखे का क्या ओढणी टाइट नहीं था तो गिर गया आणि माझा स्पायनल कॉर्डच्या इथे मला लागलं आणि इंजर्ड झालं. मग विश्वास मत चुकी कोणाची ऐका हाँ, तो पुढे स्टोरी मी डॉक्टर कडे जातोय, लाइक मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ अभी. सो बाद में आके फिर मेरे को मैसेज करना, बस मेरे को इग्नोर मत करना. मतलब क्या कौन सी उम्र है तेरी, क्या किया तू? लाइक नहीं अभी भी 10th का दिया है मैंने, वो लड़की मेरे को चाहिए, मैं इसको भूल नहीं सकता. लाइक आधी जिंदगी भी नहीं हुई है ये जो आजकल चल रहा है मार्केट में. मतलब मैं वही बोला ना, बिकॉज द सोशल मीडिया इज अ यू नो इट इज अ boon also, but it has a lot of disadvantages also. Right now people shoot a video and they post anything on the media. They feel that this will get an attention. You know, there are a lot of attention seekers right now which we have, because everyone cannot be on a platform which will give you respect. जैसे reality shows का मैं बोल रहा हूँ, not everybody will be on the dance platform. So people have started making their own dance video, and there are good dancers also. I have seen on reels. I approach them, I comment them, and they feel so happy. अरे सर आपने comment किया, because I feel talent को appreciate करना चाहिए. बट यही है कि आजकल के बच्चों का ये हो गया कि अरे मुझे ना, फॉर एग्जाम्पल देयर वर किड्स हु वर लाइक, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं डांस के. सर मैंने वीडियो किया है और मैंने आपको भी टैग किया है, बट मेरे रील्स मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, सर मैं डांस छोड़ रहा हूँ. म्हणजे हाँ, म्हणजे व्यूज के लिए डांस कर रहे हो क्या? वही दैट इज माय होल पॉइंट कि आप व्यू के लिए डांस कर रहे हो या आप कमेंट्स के लिए. आप किसके लिए डांस कर रहे हो? आपकी खुशी के लिए. आपको लगता है कि आप ये क्लासिकल परफॉर्म कर सकते हो या आप लावनी कर सकते हो, तो फिर आप करो ना. आपको, एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, अगर आप ये करते रहोगे इवेंचुअली यू विल गेट व्हाट यू वांट. बिकॉज वो एक डायलॉग है बहुत फेमस शाहरुख खान का, जो मैंने तो बहुत पहले ही सुना था, पर शाहरुख ने बाद में मैंने मूवी में सुना कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में जुट जाती है. ये सच है. आई टेल यू ऑनेस्टली. मतलब many do you guys believe in manifestation? Do you believe in we have good podcast. I do believe in, I do every day. मुझे लगता है कि मैंने जो आज तक सोचा है ना मेरे करियर को लेके, वो हर स्टेप के साथ हुआ है. मतलब when I have imagined a moment as I follow माधुरी जी and सरोज जी, कि मैं माधुरी जी के सामने नाचूंगा एक दिन उनके ही गाने पे, and she should comment me. हुआ. और जब वो मोमेंट हो रहा था ना, you know, you feel that it's a deja vu moment. Oh, I have seen this. मैंने सपने में देखा था शायद ही, वो खड़ी हुई है. You know, फिर अगेन सरोज जी आई एक एपिसोड में, तो that moment also happened. फिर तभी मेरे को मौका मिला मैं उनके पैर धोऊं, because
I really adore her, and I have taken her a lot of things what I do right now with Saroj वो ji. respect है. Yeah, she's not there right now, but wherever she is, of course, I have already told her on television also and in like off camera also ki what legacy you have taken, I will make sure that this legacy go aage. What is called pure dancing, हाँ. what is called expression, what is called the adakari, what the females used to look when they used to dance, you know. And she has not even made the female look good, she has made also the male look good when she has हाँ. choreographed it. So मुझे लगता है कि मुझे यही कहना है कि you know it is your journey and बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे रिलेटेड है, बट वो आपको समझनी चाहिए कि क्या हो रहा है जिंदगी में. अगर आप इस पे ध्यान दोगे ना कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, आप क्या करो ना समझ में नहीं आएगा. रास्ता भटक जाओगे फिर आप. इसीलिए सीढ़ियाँ चढ़ो. मैं हमेशा बोलता हूँ ट्राई टू क्लाइंब द स्टेयर्स, बिकॉज व्हेन यू कम बैक ना यू विल स्टिल क्लाइंब इट, बिकॉज यू नो दैट अच्छा ये ऐसा हुआ था इसीलिए अभी मुझे ऐसा कुछ करना है, मैं चढ़ूंगा. बट अभी क्या हो रहा है जिंदगी में, लोगों को लिफ्ट चाहिए, यू नो. इंस्टा पे डाल दो लिफ्ट, बट उनको ये नहीं पता कि लिफ्ट ऐसी जाती है और Crash हो जाएगी. बिकॉज वो मेरे आपके कंट्रोल में नहीं है. लाइक नॉट टू से बट ये ऐप है, ये कभी भी बंद हो सकता है. उसके बाद क्या, मतलब ये शॉर्ट टर्म है. अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म एक्ट्रेस बनना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म डांसर बनना है, कोरियोग्राफर बनना है, तो थोड़ा टाइम लो. आप एक रील करके लोग वर्कशॉप लेने लग गए आजकल. हाँ, वो पहले नहीं होता था. एक्टिंग का वर्कशॉप ले रहे हैं लोग, जिनको थोड़ा बहुत एक्टिंग आता है, रील बना के एक्टिंग ले रहे हैं, हालांकि वो लोग लिप सिंक ही कर रहे हैं. सो मैं ये किसी को पॉइंट नहीं करूंगा, और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ये लगता है कि व्हाट एज एन ऑडियंस आर वी टेकिंग. न्यू जनरेशन ले क्या रहा है कि अच्छा ये डांसर है तो मैं इससे सीखूंगा. अरे नहीं, तुम बिरजू महाराज जी से सीखो, ही इज द लेजेंड. या तुम कोई और बड़े इंसान से सीखो, बिकॉज उनको पता है डिटेल क्या है. अगर आपको ABCD नहीं पता है तो आप A फॉर एप्पल कैसे बोलोगे. अभी हम क्या बोलेंगे, नहीं A फॉर अक्का, B फॉर डैश, आई डोंट वांट टू से इट, बट अभी फिलहाल ये जनरेशन है मेरे पास. तो A फॉर ABCD होना, दैट्स व्हाई दे से दैट शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल संगीत भी जब सीखते हो सारेगामा पदनिसा होना बहुत जरूरी है. पूरा रूट से सिंगिंग सीखते. नहीं तो आजकल तो लोग ऐसे ही माइक और सिंगर, गिटार पीछे. so that's it. बस सही है. आई थिंक सो आज का एपिसोड बहुत अलग था. इट वाज मेरा वेरी फेवरेट पॉडकास्ट. every episode brings something different, and this was very different, and I genuinely liked it. मतलब इतना Thank you, energy, thank you. And I just want to sum up with it. Of course, you will sum up it. मैं तो मीच होगा sum up में करते हुए. तो but I'm telling you कि thank you so much for having me on this platform. And अगर मेरी बात का किसी को कोई बुरा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो मैं आपका छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना. बट जो मैंने कहा वो बहुत दिल से कहा है, और मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंसेस है और मैंने देखा है, और मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस से भी बहुत सीखता हूँ, बहुत ज़्यादा. तो मुझे लगता है कि जो मैंने अभी बोला है, इट वॉज नॉट इवन स्क्रिप्टेड, या हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि people think कि we Yeah, scripted, yeah. we were chilling here. Yeah, chill कर रहे थे हम so लोग. मुझे लगता है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड अ स्क्रिप्ट. मैं जो था वो मैंने बोला है, एंड मैंने बहुत बार ये बोल चुका, आप कोई भी इंटरव्यू देख सकते हो. बट अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट, एंड आई होप दिस रीच आउट टू पीपल, and do subscribe to their podcast and keep watching the beautiful videos, and Ganpati Bappa Moria. Moria. Say. So thank you for watching. I know like you like this episode, and if you want more episodes like this, please comment down below. If you want a part 2 also, we can do a part 2, no problem, because we love to talk about things. You can ask questions. So हम लोग वो भी कर सकते हैं. If you are watching on YouTube, do check our Spotify. We are gonna be Spotify exclusive soon, and we are also there on other audio platforms. So tune in. Listen over there. Give us a rating, 4-star, 5-star, जितना भी rating देने का अपना rating दे दो. No issue. And hi guys, if you're watching from any brand, do approach us. And one more thing, I would like to add one thing. Last, मैं भूल गया मेरे भाषण में बोलना कि one thing I would like to tell to everyone: please try to be kind, try to be humble, try to spread joy and love. बिकॉज दुनिया बहुत छोटी है, हम हर कोने में किसी ना किसी को मिलेंगे. अगर आप कुछ दे सकते हो तो प्यार और काइंडनेस है. सो प्लीज. Nice. Till then, I think so. Bye. Take care. Shabba Shabba care. Take care. Whatever it is. Peace out.